स्टूडेंट्स, आज हम हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन कर्व always formed between the circular and straight curve. That means a transition curve has a radius which decreases from infinity to the tangent point at a design radius of the circular curve. When a transition curve introduced between straight and circular curve, the radius of transition curve decrease and becomes minimum at the beginning of circular curve. Student, this is the diagram of horizontal transition curve. This is known as straight curve, and this is known as circular curve, and this is known as transition curve. Students, before this, already language says to you कि always horizontal transition curve formed between the straight and circular curve. Clear? This is the tangent distance from to the tangent point to the deflection angle point. This is the length of transition curve. Students, now the types of transition curve. Generally, three types of transition curve are spiral, lemniscate and cubic parabola. स्टूडेंट्स, जो स्पाइरल शेप है हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व की, वो फुलफिल करती है एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व की कंडीशन को, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म. सो द स्पाइरल कर्व fulfill the condition of an ideal transition curve, and the other two one is, that is lemniscate and cubic parabola. The rate of change of centrifugal acceleration is not constant in both cases, so especially deflection angle is much high. Now the calculation of length of transition curve. Number one, rate of change of centrifugal acceleration. This is the formula for calculating the centrifugal acceleration, that is C equal 80 upon 75 plus V, where V design speed of vehicle in kmph. That means C, the rate of change of centrifugal acceleration always lie करेगा between 0.5 to 0.8. That means 0.5 should be less than C should be less than 0.8, यानी सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन आपका 0.5 से 0.8 के बीच लाई करेगा हमेशा. If the design speed V in kmph, then the length of transition curve LS equal V cube upon 46.5 CR, where C rate of change of centrifugal acceleration, R radius of circular curve in meter. So easily we can find out the length of transition curve by using rate of change of centrifugal acceleration method. Second one method is rate of introducing super elevation. The length of transition curve LS equal En by 2, where E equal small e, that is slope, W plus WE total widening of pavement by 2. by 2 क्यों है? बिकॉज द पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन. अगर सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में आपके दोनों एजेस डाउन है, तो इसका मतलब आपकी जो आउटर एज है वो किसके से रेस्पेक्ट में है? सेंटर लाइन के. दैट मीन्स एल एस इक्वल ई एन बाई 2. अगर पेमेंट आपकी रोटेटेड है अबाउट इनर लाइन, तो एल एस इक्वल ई एन, दैट इज स्मॉल ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, वेयर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्या है? टोटल वाइडनिंग. ई क्या है? स्लोप है. सो दिस इज द टू फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व. थर्ड वन इज एम्पेरिकल फार्मूला, एल एस इक्वल 2.7 वी स्क्वायर अपॉन. ये फार्मूला आपका प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए है. अगर आप किसी माउंटेनियस टेरेन के लिए स्टीपेस्ट स्लोप पर आप
अगर जर्नी कर रहे हो वहाँ पर अगर आपको क्या निकालना है, वहाँ पर आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालनी है, तो एल एस इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए 3 फार्मूला हैं। बाय यूजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, नंबर 2 बाय इंट्रोड्यूसिंग सुपर एलिवेशन, और नंबर 3 बाय यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूलाज। So we can easily find out the value of length of transition curve by rate of change of centrifugal acceleration, introducing super elevation, or third one is empirical formula. Now settling out of transition curve. Settling out of transition curve है क्या? If the length of transition curve is ls and the radius of circular curve is r, then the shift of transition curve is capital S equal L square 124 R. This is the relationship. This is the relationship between length of transition curve and shift to settling out the transition curve. S equal L square 124 R. So students, अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं. A national highway passing through the rolling terrain in heavy rainfall area has a horizontal curve of radius 500 meter. Design the length of transition curve assuming suitable data. स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे कहा है कि ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालिए। तो आपको पता है डेफिनेटली कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर 1 बाय इंट्रोड्यूसिंग सुपर एलिवेशन, नंबर 2 बाय इंट्रोड्यूसिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन मेथड, या सीधे आप एम्पेरिकल फार्मूला। तीनों फार्मूला से रिलेटेड आप किसी भी फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है सिर्फ आर दिया है, रेडियस ऑफ कर्व, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, उसने कहा है सुटेबल डाटा को एज्यूम करना है। तो आपको पता है अगर नेशनल हाईवे है तो नेशनल हाईवे के लिए डिज़ाइन स्पीड हमने पहले भी कितना बताया था, 80 to 100 kmph। तो लेट अस एज्यूम v इक्वल 80 kmph, r 500 मीटर, 500 मीटर दिया है आपको। अब आपको ये भी पता है w कितना होता है, पेमेंट की विड्थ 7 मीटर। अगर आपने विड्थ ऑफ पेमेंट 7 मीटर लिया है तो नंबर ऑफ लेन्स कितना हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2, बिकॉज ईच नंबर ऑफ लेन्स हैविंग 3.5 मीटर विड्थ। सो क्लियर है। तो n इक्वल टू w इक्वल 7 ये हमें एज्यूम करना है, और स्लोप हमने एज्यूम कर लिया 1 in 150। क्लियर है। नाउ द अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज c इक्वल 80 अपॉन 75 प्लस v। तो 80 कांस्टेंट है, 75 कांस्टेंट है, 80 आपने एज्यूम किया है NH के लिए, तो वैल्यू कितना आई 0.52। देखिए स्टूडेंट्स, एक कंडीशन थी कि आपका हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन जो कांस्टेंट था c इक्वल, वो लाई करेगा 0.5 to 0.8 के बीच। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। नाउ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन ls इक्वल 0.0215 v क्यूब ऑन cr 42.33 मीटर। क्लियर है। सेकेंड वन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय इंट्रोड्यूसिंग सुपर एलिवेशन। तो ई तो आपको निकालना है स्लोप, वी क्यू अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 225 r। तो 80 आपने ज्यूम किया है, इस यहाँ से आपने स्लोप निकाला है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था जो मैक्सिमम स्लोप है वो 0.07 होता है, यानी 7%। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू इक्वल NL स्क्वायर अपॉन 2r प्लस v अपॉन 9.5 अंडर रूट। दिस इज मैकेनिकल वाइडनिंग एंड दिस इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। सो टोटल वाइडनिंग ऑफ पेमेंट इज दिस। सो टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट कितना हुआ, 7.45। अब LS इक्वल EN, दैट मीन्स LS इक्वल EN है, तो इसका मतलब आउटर एज इनर एज के रेस्पेक्ट में है, सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ, तो LS इक्वल EN, दैट इज E आपको पता है
एन आपको पता है स्लोप 150, तो यहाँ से आपने किसी वैल्यू निकाल ली। और थर्ड वन बाई IRC मेथड, एम्पेरिकल फार्मूला 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, सीधे फार्मूला है 34.6 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व डिज़ाइन करने के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसी के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल आपसे हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से थ्योरेटिकल के लिए आपसे 2 नंबर में भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ या शेप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व, आल्सो डिफाइन द आइडियल कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्लियर है? अब इसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल और हम देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा, और किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन जो भी आपकी क्वेरी है किसी भी टाइम आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।